میرا بابا ابن حیدر کرار بھی نہیں، کون بچائے گا میری عزت؟ اے میری پھوپھی جان، میری عزت کو کون بچائے گا؟ سیدہ سکینہ کی آنکھ میں آنسو، میری پھوپھی جان میری عزت کو کون بچائے گا؟ دیکھ میرا بھیا قاسم شہید ہو کر کربلا میں پڑا ہے، میرا چچا میری پیاس بجھانے کی خاطر اپنے بازو کو کٹا کر جام شہادت پی کر چلا گیا، میرا بابا جان 72 زخم کھا کر شہید ہو گیا، دیکھ پھوپھی میرے بابا کا سر نیزے پر سوار ہے، کون بچائے گا میری عزت کو؟ حضرت زینب کی للکار سنائیں زور سے کا سکینہ، اگر تیرے بابا حسین کی رگوں میں خون فاطمہ خون علی ہے تو میری رگوں میں سکینہ، اگر تیرے بابا کی چھاتی میں دودھ فاطمہ ہے تو میری چھاتیوں میں بھی دودھ فاطمہ ہے، سبحان اللہ، اگر تیرے باپ نے امی فاطمہ کو دودھ کیا ہے تو مجھ زینب نے اے میری بیٹی سکینہ، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تیری پھوپھی زندہ ہے تیری عزت کو کوئی حملہ نہیں کر سکتا، تیری عزت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت سیدہ زینب نے ذوالفقار حیدری کو نیام سے نکالا، نیام سے نکالا ذوالفقار حیدری کو، نیام سے نکالا ذوالفقار حیدری کو، وہ ذوالفقار حیدری جو کبھی میدان بدر میں چلی ہے، وہ ذوالفقار حیدری جو کبھی میدان احد میں چلی ہے، وہ ذوالفقار حیدری جو کبھی میدان خندق میں چلی ہے، جو ذوالفقار حیدری جو کبھی میدان کربلا میں چلی تھی، وہ ذوالفقار جب چلی تھی تو آواز آ رہی تھی، شیر مردہ شاہ یزدہ خود فتح پروردگار اللہ فتح الا علی اللہ سیف الا ذوالفقار۔ اب وہ ذوالفقار حیدری نیام سے باہر آ گئی، حضرت سیدہ زینب نے ذوالفقار حیدری نیام سے نکالی، پکار کر کہا اب تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عباس علم بردار نہیں ہے، اب تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قاسم نوجوان نہیں ہے، اب تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی علی اکبر جیسا بہادر نہیں ہے، اب تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی خاندان نبوت کا کوئی شہزادہ نہیں ہے، اب تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی حسین نہیں آئے گا، اب تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی عباس نہیں آئے گا۔ حضرت زینب نے ذوالفقار حیدری کو ہوا میں لہرا کر کہا، اے 22,000 ظالموں، اگر میری بھتیجی سکینہ پر نظر اٹھائی تو سکینہ کی پھوپھی زینب فاتح خیبر کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی کی تلوار سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سیدہ زینب کی ذوالفقار گھوم رہی ہے، کبھی گھوم رہی ہے دائیں جانب، کبھی گھوم رہی ہے بائیں جانب، ذوالفقار حیدری چمک رہی ہے، خدا کی قسم 22,000 لشکر جنرال میں سناٹا چھا گیا۔ ہمارے ساتھ بولا، ارے زینب سے تلوار مت چلانا، ورنہ صبح قیامت تک کے لیے تم نامراد ہو جاؤ گے، صبح قیامت تک کے لیے بزدل کہلاؤ گے، صبح قیامت تک کے لیے غیر مرد کہلاؤ گے، صبح قیامت تک کے نامرد کہلاؤ گے۔ حضرت زینب نے کہا، اے مولا تلوار چلانا میرا کام ہے، حفاظت کرنا تیرا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، خاندان اہل بیت، بے غیرت مسلمانوں، حضرت سکینہ کی عزت کی حفاظت حضرت زینب نے ذوالفقار، تمہیں بھی تو میرے مجاہد نے بیچا دے دیا ہے۔ اگر زینب ذوالفقار حیدری چلا کرتی ہے تو تم بیچا چلا کر اپنی بیٹیوں کی حفاظت، لیکن تم تو اتنے نامرد ہو گئے ہو، اتنے بزدل ہو گئے ہو کہ تمہاری بیٹیاں غیروں کے بستر پہ جا رہی، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے؟ ہزاروں لاکھوں بیٹیاں، 10 لاکھ بیٹیاں اب تک مرتد اور مشرک اور کافرہ ہو چکی ہے۔ میری بہنوں، احمد رضا منظری تمہارا بھائی تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، ارے یہ تمہارے پیڑ غیروں کا نطفہ لینے کے لیے نہیں ہے، حسینیوں کا نطفہ لینے کے لیے ہے۔ اے میری بہنوں، تمہاری پیٹ سے کوئی رامپال نہیں، تمہاری پیٹ سے کوئی فاتح سومنات پیدا ہونا چاہیے، تمہاری پیٹ سے کوئی اور نہیں، تمہاری پیٹ سے محمود غزنوی پیدا ہونا چاہیے، تمہارے پیٹ سے پھر کوئی طارق ابن زیاد پیدا ہونا چاہیے، تمہارے پیٹ سے کوئی اندلس کا فاتح اعظم پیدا ہونا چاہیے، تمہارے پیٹ سے پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آنا چاہیے، تمہارے پیٹ سے پھر کوئی محمد ابن قاسم آنا چاہیے، تمہارے پیٹ سے پھر کوئی موسیٰ بن نصیر آنا چاہیے، تمہارے پیٹ سے پھر کوئی دوسرا مجاہد
अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लाजवाब क्या पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंजरी तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, किसी गैर के साथ फ्रेंडशिप मत करो। देखो पूरी स्कीम मेरे पास इस मोबाइल में मौजूद है, कयाम गाह पर आकर देख लेना। इसमें कितने तरीके लिखे हैं मुस्लिम लड़कियों को फांसने के लिए। सबसे पहले उनके हुस्न की तारीफ करो, उसके बाद उनके मजहब की तारीफ करो, उसके बाद उनके पर्दे की तारीफ करो, उसके बाद उसके खानदान की तारीफ करो, उसके बाद उसके गालों की तारीफ करो, उसके बाद उसके बालों की तारीफ करो, उसके बाद उसके लबो रुखसार की तारीफ करो, उसके बाद उससे कहो आई वांट टू मेक द फ्रेंडशिप विद यू, मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आफ्टर दिस आई वांट टू गेट मैरिड विद यू, उसके बाद मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। ऐ मेरी बहनों, अरे जो तुम्हारे मजहब का नहीं है, जो तुम्हारे धर्म का नहीं है, जो तुम्हारे कुरान का नहीं है, जो तुम्हारे ईमान का नहीं है, जो तुम्हारी मिल्लत का नहीं है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी बहनों अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपनी माल की हिफाजत करो। अगर कोई सकीना नहीं आएगी तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, अपनी जुल्फकार लेकर अली नहीं आने वाला है। अब तुम्हें अपनी हिफाजत करना है तो मुजाहिद का बेलचा लेकर आना है, मुजाहिद का बेलचा ले आओ। मेरा मुजाहिद वहीं से दुआ करेगा। अरे जो कब्र में जाने के बाद मुस्तफा का दीदार कर सकता है, जो चलते फिर बहनों, मेरी कौम की माओ, ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा छोटा, तुम्हारा बड़ा तुम्हें पैगाम देकर जाता है। अगर सच्ची तुम मुजाहिद मिल्लत की मानने वाली हो तो तुम अपने माँ बाप से कहो कि हमें पर्दा पहनाओ। और तुमसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी बेटियों को ये एंड्रॉइड फोन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये 15-20 हजार का मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस घर के अंदर बेटी के पास मोबाइल आ गया उस घर में पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं, उस घर में दीवार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उस घर में लाखों दरवाजे लगा दो, ये मोबाइल अब तुम्हारी बेटियों के हाथ में आ गया तो कोई दरवाजा काम नहीं करेगा, कोई पर्दा काम नहीं करेगा, कोई दीवार काम नहीं करेगी, कोई छत काम नहीं करेगी। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, कमेटी वालों, ये तुम्हें मिशन चलाना है। किसी भी बेटी के हाथ में ये मोबाइल ना जाना चाहिए, किसी भी बेटी के हाथ में ये मोबाइल नहीं जाना चाहिए। अगर कॉलेज अपनी बेटियों को भेजो तो खुद भेजो, खुद लेकर आओ। यूनिवर्सिटी भेजो, खुद भेजो, खुद लेकर आओ। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेजों की तालीम का मुखालिफ हूँ जो तुम्हें नंगा करे, ऐसी तालीम का मुखालिफ हूँ जो तुम्हें काफिरा बनाए, ऐसी तालीम का मुखालिफ हूँ जो तुम्हें मुर्तद्दा बनाए, ऐसी तालीम का मुखालिफ हूँ जो तुम्हें मुशरिका बनाए, ऐसी तालीम का मुखालिफ हूँ कि हजरत सफिया जो मेरे नबी की फूफी है, क्या वो डॉक्टर सर्जन नहीं थी? क्या नबी की बेटियों ने सर्जरी नहीं की है? क्या सहाबा की बीवियों ने सर्जरी नहीं की है? क्या सहाबा की बीवियां डॉक्टर नहीं थी? क्या सहाबिया की बीवियां इंजीनियर नहीं थी? अरे सब कुछ थी, उन्होंने पर्दे में रहकर तिजारत भी की है। हजरत खदीजा से बड़ा तिजारत करने वाला कौन था? मक्का की धरती पर सबसे बड़ी तिजारत करने वाली हजरत खदीजा है। क्या खदीजा का कभी पर्दा हटा? हजरत खदीजतुल कुबरा की तिजारत का आलम हुई था, मुल्क शाम में तिजारत हो रही है, हजारों लोग तिजारत कर रहे हैं, लेकिन खदीजा का दिल आया तो किस पर दिल आया? मुस्तफा जाने रहमत पर दिल आया। हजरत खदीजा से पूछा, ऐ खदीजा तुम मुस्तफा से इश्क तो कर बैठी? तो खदीजा ने जवाब दिया था, मेरी कौम की बेटियों तुम्हारे नाम अहमद रज़ा मंजरी का ये पैगाम। हजरत खदीजा ने कहा, मक्का के अंदर मोहम्मद से ज्यादा पाक दामन कोई नौजवान नहीं है, तुम भी पैगाम पहुंचाओ जो पूरे गांव में सबसे बड़ा पाक दामन हो। तुम इमाम साहब के जरिए पैगाम पहुंचाओ, सुन्नत खदीजा है। हजरत खदीजा से पूछा, तुमने मोहम्मद से पैगाम क्यों किया है? तो खदीजा ने कहा, मोहम्मद से बड़ा सच्चा पूरे मक्का की धरती पर कोई नहीं है। इस गांव का जो सबसे सच्चा मुसलमान हो तुम उसके साथ अपनी शादी का पैगाम पहुंचाओ। हजरत खदीजा से कहा, तुमने मोहम्मद से शादी का पैगाम क्यों दिया है? तो खदीजा ने कहा, मोहम्मद से ज्यादा शरीफ और हयादार कोई इंसान नहीं है। अरे तुम भी हयादार इंसान को तलाश करो, अहमद रजा मंजरी तुम्हारे साथ है। हजरत खदीजा ने कहा, मोहम्मद से ज्यादा पक्का अकीदे वाला कोई नहीं है। अरे मोहम्मद जब चलते हैं तो निगाहों को झुका कर चलते हैं, मोहम्मद जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि समंदर का तरन्नुम उनकी आवाज में आ गया है, मोहम्मद जब बोलते हैं तो ऐसा लगता फूल चल रहे हैं, मोहम्मद जब गुफ्तार करते हैं तो ऐसा लगता कि दिल खिंचा जाता है। ऐसा नौजवान तुम्हें मिले तो इमाम के पास रिश्ता पहुंचाओ, महल्ले वालों के पास रिश्ता पहुंचाओ। शरीयत कहती तुम्हारी इजाजत के बगैर कभी निकाह नहीं हो सकता, जब तक तुम इजाजत नहीं दोगी निकाह नहीं होगा। लेकिन मेरी कौम की बेटियों, अगर हजरत खदीजा ने चुना है तो दुनिया के सबसे बड़े इंसान को चुना है। अगर खदीजा ने चुना है तो दुनिया के सबसे बड़े पाक दामन को चुना है। अगर खदीजा ने चुना है तो दुनिया के सबसे बड़े शरीफ नफ्स इंसान को चुना है।
बल्कि मैं जुमला अकीदे के एतबार से भी बोलूंगा, अगर खदीजा ने चुना है तो नबियों के इमाम को चुना है, खदीजा ने अगर चुना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना है, खदीजा ने अगर चुना है तो अमना के लाल को चुना है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है के धुआं नहीं, करे मथे अहले दुअल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना है खदीजा ने। कौन मोहम्मद है जिसको खदीजा ने चुना है? आला हजरत उसी के शौहर के बारे में कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, मेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐ खदीजा तूने किसे चुना है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं चेहरे बददुहा है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, नेमतें बांटता जिस शब्द वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। खदीजा ने चुना है तो किसको चुना है? जिस पर अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह लम याते नज़ीरों का फी नज़रिम मिसले तो रशद पैदा जाना। आला हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं ऐ खदीजा तूने किसको चुना है? जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकावे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। खदीजा तूने किसको चुना है? जिसके बारे में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं ताला अल्लाह ज़ाते मुस्तफा का हुस्न लासानी, कि एक इसमें इक्ता जमा है जिसने औसाफ इम्कानी, जवाब यूसुफी सोफे मसीही हुस्न कनानी, जिसके बारे में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और खदीजा ने किसको चुना है? जिसके बारे में आला हजरत आखिरी मोहर लगाते हैं या रसूल अल्लाह जान दिल होश व खिराल सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। खदीजा ने चुना है तो किसको चुना है? जिसका रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, और खदीजा का शौहर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल गिरेंगे, रही जिंदगी तारा कोट वालों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई हो गई हो गई हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, सूरज हूं जिंदगी की रमा छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफा छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सूजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह कहने ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा है। When I will come to return your place Karakot in district Jaspur in Odisha, I will deliver a speech after this matter in the, if I will alive in the world, I will die, I will deliver a speech in doomsday in front of Allah, Bata Prophet Rasulullah, Wama